Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well and you are preparing pretty well for the CSIR as well as your SET examination. So this is the second part of the rapid revision series by Dwyer.com. So if you have not watched that video, I will tag it in this video or I will also provide the link in the description box as well. So you can check it out to maximize your score and therefore to confirm your selection. So don't miss the video and do watch the video till the end because all the questions and all the topics are important for the examination point of view. And also do like, share and subscribe my channel for more such video. I have also one request, do watch the community post because I am regularly providing different flashcards that are important and also I am posting so many important multiple choice questions, and do watch the shorts because it will motivate you, and also I provide so many important topics in the 1 minute. So don't miss it and do watch it regularly. So let's start with the very first question. So this is the question number 1. So the question is, which of the following function of DNA is necessary for the purpose of evolution? Is it mutation, replication, translation and transcription? So this question can also be asked in the evolution or ecology portion because the sources of evolution is the mutation. So the correct answer for this question is mutation, as mutation arises variation in the species. Mutation is responsible for the changes in the bases within a DNA and therefore it generates variation which is responsible for the evolution process of a species. Therefore इस टाइप का क्वेश्चन CSIR में और सेट में आ सकता है. म्यूटेशन इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग वेरिएशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी ऑफ tRNA? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, बेस एंड शुगर फॉस्फेट बैकबोन इंटरैक्शन, बेस पेयरिंग. So it is the hydrophobic interaction which is not responsible for the stability of tRNA because it has a negative charge in the backbone of the tRNA structure and therefore it is not possible, very unlikely for the molecule to have a hydrophobic nature. Therefore जो hydrophobic interaction है वो stability provide नहीं करता है tRNA को. Thus hydrophobic interaction do not play any role in the structural stability of the molecule. Question number 3, which is related to the histone. So the question is, with respect to the tails of the histone molecule, which of the following is not true? N-terminal extension, lacks defined structure required for the association of nucleosome, site for extensive modification. So the topic histone is very much important. So many minute questions arises from this topic, one of which is presented here. So the correct answer for this question is, or with respect to the tails, the following statement is not true. Which statement is not true? So the tail is not required for association of the nucleosome. The tail of the histone is not required for the association for the DNA with the histone octamer into a nucleosome. So this fact has been proved experimentally also by treating the nucleosome with the protease trypsin, and trypsin is known to cleave the protein after the positively charged amino acid. Thus एंड टर्मिनल टेल अगर रिमूव हो जाता है सो कोई भी स्ट्रक्चरल वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है न्यूक्लियोसोम में. देयरफॉर जो टेल है इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियोसोम. नाउ अ सी सेक्शन और अ बी सेक्शन क्वेश्चन दैट अराइजेस फ्रॉम द TI प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिंस. It can be asked about the different function of the virulence gene like Vir-A, Vir-G, Vir-D1 and D2, Vir-E2, Vir-B, Vir-H and ultimately Vir-F. So I have arranged this in the sequence they are activated. यानी ये सिर्फ ऐसे ही नहीं रैंडम अरेंज किया मैंने. जिस सीक्वेंस में विरजिन एक्टिवेट होते हैं उसी सीक्वेंस में मैंने इन्हें अरेंज किया है. लाइक Vir-A जो है इट प्रोड्यूसेस अ पेरीप्लाज्मिक मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट सेंसेस स्पेसिफिक phenolic compounds released by the plant after an injury like acetosyrinzone and syrinzone. और जो Vir-A होता है it also interact with the CHVE gene present on the bacterial chromosome and it is important for the binding of sugar co-inducers. अब जो phenolic compounds और sugar inducers रहते हैं वो ऑटोफॉस्फोराइलेशन करते हैं Vir-A का, और Vir-A जो है it transfer the phosphate group to Vir-G, therefore activating Vir-G. यानी सबसे पहले Vir-A एक्टिवेट होता है
विर ए क्या करता है, विर जी को फॉस्फोरिलेट करके एक्टिवेट करता है, एंड देन विर D1 एंड D2 दैट इनिशिएट्स द ट्रांसफर प्रोसेस बाय द निकिंग TDNA, यानी एंडोन्यूक्लियस जैसा काम करते हैं ये। विर E2, उसके बाद विर बी, विर एच एंड विर एफ। तो आपको सिर्फ एक स्लाइड याद रखना है कि किस विरुलेंस जीन का क्या फंक्शन है, so that you will be good to go. So don't miss this topic. This can be asked in the SET examination, I am again repeating, and also in the B section as well as in the matching form in the C section. Now one more question. Which organization in India approves and gives regulatory clearance of biologicals? So it is the Central Drug Standard Control Organization, that is abbreviated as CDSCO, which is a regulatory body that plays a vital role as well as a critical role in the Indian healthcare system. यानी कभी भी कोई ड्रग का अप्रूवल होना है फॉर अप्रूविंग न्यू ड्रग्स एंड सर्टन स्पेशलाइज्ड लाइसेंसेस फॉर द ड्रग्स, जैसे कोई प्रोडक्ट बनाया गया है किसी डिजीज़ के लिए, कोई वैक्सीन डेवलप किया गया है, तो वो सब का अप्रूवल जो है इंडिया में CDSCO देता है। एंड ऑल्सो इट कंडक्ट सो मेनी क्लिनिकल ट्रायल्स एंड आफ्टर दैट ही अप्रूवल मिलता है। सारे ड्रग्स का स्टैंडर्ड यही सेट करता है। एंड ऑल्सो इट कंडक्ट सो मेनी मीटिंग्स, सो मेनी काउंसलिंग, कि कभी भी कुछ भी ड्रग्स रिलीज़ करना है फॉर अ सर्टेन काइंड ऑफ डिजीज़, तो पूरा क्लिनिकल ट्रायल से लेके अप्रूवल तक का जो प्रोसेस होता है वो CDSCO करता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A. Now one more important topic from which numerous questions can be asked, like the characteristics of histone proteins like H1A, H2A, H2B, H3 and H4. So the molecular weight of the histone protein is mentioned, like the H4 is the lightest in weight and it is H1 is highest molecular weight histone protein, and number of amino acid is also mentioned. So if the weight is lighter, obviously the amino acid number will be very low, so only 102 amino acid is present in the H4. So you have to remember the weight, the lighter is H4 and the heavier is the H1. Now one more important topic, histone acetylation. Histone acetylation is asked multiple times in CSIR. So the addition of acetyl group, that is CH3CO, is known as the histone acetylation. And the histone acetylation का जो major role है that it activates the transcription, यानी कि ये ट्रांसक्रिप्शन को रोकता नहीं है, किसी तरह से ये जीन एक्सप्रेशन को रोकता नहीं है। इट स्टिमुलेट्स द जीन एक्सप्रेशन। कैसे स्टिमुलेट करता है? द एडिशन ऑफ अ सिंगल एसिटिल ग्रुप टू लाइसिन 16 in the tail of the H4 histone prevents the formation of a 30 nanometer chromatin fiber, यानी कि अगर 30 nanometer chromatin fiber का formation होगा, सो जो chromatin है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही क्लोज्ड हो जाएगा, क्लोज्ड कन्फर्मेशन में रहेगा। एंड कोई भी चीज़ क्लोज्ड रहती है तो उसका एक्सेसिबिलिटी, उसे एक्सेस करना इज़ मच मोर डिफिकल्ट देन एज कम्पेयर टू दी ओपन फॉर्म। सो ये क्या करता है, ये क्रोमैटिन फाइबर 30 नैनोमीटर क्रोमैटिन फाइबर बनने नहीं देता है। सो क्रोमैटिन जो है वो हमेशा ओपन कन्फिगरेशन में रहेगा एंड इट विल बी अवेलेबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन। एंड ट्रांसक्रिप्शन होगा तो जीन्स क्या होंगे, एक्सप्रेस होंगे। सो देयरफॉर एसिटाइलेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग द ट्रांसक्रिप्शन बाय प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ 30 नैनोमीटर क्रोमैटिन फाइबर। यहाँ से दो क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो अराइज हो सकता है कि लाइसिन या फिर कौन से स्पेसिफिकली कौन से रेसिड्यू पे एसिटिल ग्रुप का अटैचमेंट होता है। एंड आफ्टर दैट ये भी पूछा जा सकता है हाउ इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ 30 नैनोमीटर क्रोमैटिन फाइबर। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए। नाउ एसिटाइलेशन ऑफ कोर हिस्टोन बाय हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज एंजाइम इज एसोसिएटेड विद ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन। सबसे पहले तीन कीवर्ड्स आप याद रख लीजिए। एसिटाइलेशन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, इट मीन्स इट एक्टिवेट्स और स्टिमुलेट्स द ट्रांसक्रिप्शन। ये बिल्कुल भी साइलेंस नहीं करता है जीन को। नाउ कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है हिस्टोन एसिटाइलेशन के लिए? हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेजेस। सो एसिटिल ग्रुप्स आर एडेड टू द स्पेसिफिक लाइसिन रेसिड्यू, यानी किसी भी लाइसिन में थ्रू आउट द हिस्टोन में आपको लाइसिन देखने को मिलेगा, तो कहीं पे भी जाके एसिटिल ग्रुप अटैच नहीं होता। इट इज़ एडेड टू अ स्पेसिफिक लाइसिन रेसिड्यू ऑन द कोर हिस्टोन। और जो फैमिली ऑफ एंजाइम या जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है फॉर एडिंग द एसिटिल ग्रुप इज द हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेजेस, जिसको हम बोलते हैं HAT
या फिर KAT भी बोला जाता है। KAT क्यों बोलते हैं? K फॉर लाइसिन, इसीलिए इसे KAT या HAT बोला जाता है। नाउ एसिटिल ग्रुप्स आर एडेड टू स्पेसिफिक लाइसिन रेसिड्यू थ्रू दी HAT और KAT, एंड इसका ऑपोजिट, इफ वी हैव टू रिमूव दी एसिटिल ग्रुप देन दैट इज HDACs आर रिक्वायर्ड। हैट्स जो हैं वो क्या करेंगे? ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर्स होंगे बिकॉज दे विल prevent the formation of the 30 nanometer chromatin 5, whereas HDACs are transcriptional repressor. This line is very much important. यहाँ से questions बहुत सारे arise हो सकते हैं। जो HAT है वो क्या है? वो activator है because it is preventing the formation of 30 nanometer chromatin fiber and ultimately it is stimulating the transcription. Now HDAC क्या कर रहा है? इट इज़ अ रिप्रेसर बिकॉज ये एसिटिल ग्रुप जो लगा हुआ था, जो HAT ने लगाया था, उसे रिमूव कर रहा है, देयरफॉर ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन हो रहा है यहाँ पे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है, डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। सो बेसिकली एसिटाइलेशन ऑफ लाइसिन रेसिड्यू एट पोजीशन 16 ऑन हिस्टोन 4, यानी 4th हिस्टोन में 16th पोजीशन के लाइसिन में एसिटिल ग्रुप अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ HAT. So this is the picture of acetylation. So the positively charged tail of nucleosome histone protein interact with the negatively charged phosphate group of DNA. Now after the acetylation, यानी कि यहाँ पे अटैच होगा CH3CO group, and acetylation कहाँ होता है? Acetylation of the tails weaken their interaction with DNA and may permit some transcription factors to bind to DNA. यानी एसिटाइलेशन हो रहा है H4 के 16th पोजीशन के लाइसिन में, और ये क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है, इंटरफियर करता है, 30 नैनोमीटर क्रोमैटिन फाइबर नहीं बनने देता है। एंड यहाँ पे इस वाले फिगर में देखिए कितना ज़्यादा बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो गैप आया है वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर बाइंड हो सकते हैं, एंड वंस द ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स आर बाइंडेड, वहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ एसिटाइलेशन वर्क्स. Now one more important question from molecular biology which can be asked definitely, यानी ये question आने के chances 100% है. What marks the difference between the solenoid and the zigzag model of 30 nanometer fiber? So 30 nanometer fiber जो है it exists as a solenoid model as well as zigzag model. So clear distinction क्या है दोनों के बीच में, यानी major difference क्या है दोनों के बीच में? Is it a linker histone molecule? Is it a linker DNA, nucleosome structure or 10 nanometer fiber? So it is the linker DNA that differentiates between the zigzag model as well as the solenoid model of 30 nanometer fiber. So unlike the solenoid model, zigzag model conformation requires the linker DNA to pass through the central axis of the fiber in a relatively straight form. Now longer linker DNA favors this conformation, और यहाँ पे डायग्राम में भी मैंने मेंशन किया है जिगजैग मॉडल एंड सोलेनॉइड मॉडल. अब इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन देखते हैं. नाउ वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रीवियस क्वेश्चन. द डिस्टिंक्ट जिगजैग अपीयरेंस ऑफ द क्रोमैटिन फाइबर इज ड्यू टू, यानी जो जिगजैग अपीयरेंस रहता है 30 नैनोमीटर फाइबर का, विच इज ड्यू टू द न्यूक्लियोसोम, हिस्टोन कोर और लिंकर डीएनए. सो इट इज ड्यू टू द लिंकर डीएनए. अभी जस्ट हमने देखा कि क्लियर डिस्टिंक्शन जो सोलेनॉइड मॉडल है और जिगजैग मॉडल है वो इट इज़ ड्यू टू द लिंकर डीएनए. सो देयरफॉर जो जिगजैग अपीयरेंस है इट इज़ ड्यू टू लिंकर डीएनए. द हिस्टोन H1 बाइंडिंग produces a more defined angle of DNA entry and exit from the nucleosome. The effect results in nucleosome DNA taking on a distinct zigzag appearance. यानी लिंकर डीएनए की वजह से ही जो अपीयरेंस है 30 नैनोमीटर क्रोमैटिन का वो जिगजैग दिखता है. डायग्राम से भी देखते हैं. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ फर्स्ट जो दिख रहा है वो जिगजैग अपीयरेंस है 30 नैनोमीटर क्रोमैटिन फाइबर का, एंड उसके बगल वाला सोलेनॉइड है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम. सो नाउ सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज फ्रॉम द माइक्रोबायोलॉजी, यानी यहाँ पे हम लोग कुछ माइक्रोबायोलॉजी जिससे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं CSIR में चाहे सेट एग्जाम में, वो देखते हैं. सो बेसिकली अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें इन टर्म्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, द ग्रोथ इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, यानी 2 से 4, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करके जो नंबर में ग्रोथ होता है उसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी में ग्रोथ. और जो माइक्रोबियल सेल्स होते हैं उनकी एक फाइनाइट लाइफ स्पैन होती है, यानी कि वो इमॉर्टल नहीं होते हैं, एक सर्टेन टाइम तक ही वो ग्रो करते हैं, कंटिन्यूड ग्रोथ दिखाते हैं वो. जैसे कि अगर आपने एक मीडिया में कुछ कॉलोनीज़ को इनॉक्यूलेट किया है, फिर अगर आपने
इसमें फ्रेश मीडियम प्रोवाइड नहीं किया तो उनका क्या हो जाएगा, उनका ग्रोथ सस्पेंड हो जाएगा एंड सारी जो इसमें बैक्टीरियल पॉपुलेशन है वो अल्टीमेटली पूरी डिक्लाइन हो जाएंगी. सो माइक्रोबायोलॉजी में हमेशा जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू होता रहता है जब तक आप मीडिया प्रोवाइड करते रहेंगे, फ्रेश न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स उनको मिलते रहेंगे, वो अपना ग्रोथ करते रहेंगे एंड वंस द मीडियम इज स्टॉप द ग्रोथ विल बी स्टॉप्ड. So when one cell eventually separates into two cells and the time taken for that is known as the generation time. So एक generation में जितने भी cellular components हैं, constituents हैं, वो proportionally increase होते हैं. यानी कि ऐसा नहीं कि एक सेल में ज़्यादा चले जाएगा, दूसरे सेल में कम चला जाएगा. एक बैलेंस रहता है, एक proportionality रहती है दोनों में. सो सेल्स आर दस सेट टू बी इन अ बैलेंस्ड ग्रोथ. यानी अगर एक सेल से, ये अगर मदर सेल है, इससे 2 डॉटर सेल बन भी रहे हैं तो दोनों का जो सेलुलर कॉम्पोनेंट्स है, सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, दैट विल बी इक्वल इन बोथ द डॉटर सेल एंड दैट इज नोन एज द बैलेंस्ड ग्रोथ. Each daughter cell receives a chromosome and sufficient copies of ribosome and all other macromolecular complexes and other like biochemical जो moieties रहती हैं वो भी इक्वल दोनों में डिवाइड होता है. सो जो मेजर फैक्टर है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ जनरेशन इन अ गिवन बैक्टीरियल स्पीशीज इज हाईली वेरिएबल एंड इट डिपेंड्स ऑन द न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, genetic factors as well as temperature. For the laboratory culture of E. coli, so approximately it takes 20 minutes to divide into 2 new cell. यानी कि जो generation time है E. coli का that is about 20 minutes. So यहाँ से एक क्वेश्चन बना. और कुछ बैक्टीरिया इससे फास्टर भी ग्रो करते हैं और जो बहुत सारे बैक्टीरिया वो इससे स्लोअर रेट पे ग्रो करते हैं, यानी 20 मिनट से ज़्यादा का समय लेते हैं. नाउ जिससे क्वेश्चन आएगा वो है ये फॉर्मूला. सो द टाइम दैट इट टेक्स दिस टू अगर, यानी जनरेशन टाइम एक सेल से जो 2 सेल बन रहे हैं वो क्या होता है, उसमें टोटल सेल नंबर एंड मास भी डबल होता है. तो एक फिक्स्ड रिलेशनशिप है दैट इज गिवन थ्रू द फॉर्मूला n इज इक्वल्स टू n नॉट 2 to the power n, where n is the final cell number, n naught is the initial cell number and n is the number of generation during the period of exponential growth. So ये जो है फॉर्मूला वो हर बार CSIR के पेपर में आपको देखने को मिलेगा. माइक्रोबायोलॉजी से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो डोंट मिस इट. ये जो फॉर्मूला है उसके और भी वेरिएंट्स हैं, मैं एक एक करके बताऊंगी. नाउ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कई बारी जो फॉर्मूला होता है वो 2 to the power n होता है. n इज़ द नंबर ऑफ जनरेशन टाइम. एंड यहाँ पे एक और फॉर्मूला ये निकल के आता है, ये वाला n को कैसे निकालना है. सो दिस इज n नॉट. क्या है n नॉट? हमेशा हम किस लिए रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल किसी चीज़ को हमें बताना है तो n नॉट लगाते हैं. द सेल्स इन इनिशियल पॉपुलेशन एंड nt जो है द सेल्स इन पॉपुलेशन आफ्टर अ टाइम t, तो nt. सो नाउ nt का जो फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल आफ्टर अ टाइम t इज इक्वल्स टू population of the bacterial initially into the 2 to the power n, यानी number of generation time. So इसका जो फॉर्मूला अगर लॉग लगाएंगे तो अल्टीमेटली आपको एक ये फॉर्मूला याद रखना है, एक ये फॉर्मूला याद रखना है, एक ये वाला और इसके पहले वाला. किसी ना किसी फॉर्म में फॉर्मूला भी डायरेक्ट CSIR पूछ सकता है. एक और फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, जो मुझे देखने को मिला पेपर्स में, वो ये है, वंस द ग्रोथ रेट कॉन्स्टेंट इज नोन द मीन जनरेशन टाइम that is the doubling time can be calculated from the following equation. G is equals to 1/k. तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं जनरेशन टाइम अगर ग्रोथ रेट कांस्टेंट आपको पता है तो. सो जनरेशन टाइम को डबलिंग टाइम भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक सेल से जब 2 सेल बन रहे हैं तो उसी टाइम पीरियड को हम कहते हैं जनरेशन टाइम एंड दैट कैन बी कैलकुलेटेड इफ यू हैव द ग्रोथ रेट कांस्टेंट. सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ द जनरेशन टाइम गिवन इन द slide. You can take screenshot and memorize it because directly formula भी chances हैं आने के. एक और क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ से है माइक्रोबायोलॉजी से. द की प्रोसेस एंड प्रोकैरियोटिक इन द नाइट्रोजन साइकिल. सो नाइट्रिफिकेशन के लिए कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर. डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, बेसिलस, पैराकोकस, स्यूडोमोनास. एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए फ्री लिविंग में भी एरोबिक अलग, एनारोबिक अलग, सिम्बायोटिक अलग. सो ये सारे आपको लर्न रखने हैं क्योंकि एग्जाम्पल्स ही CSIR ज़्यादा पूछता है. सिम्बायोटिक में एज वी नो राइजोबियम, ब्रैडीराइजोबियम, फ्रैंकिया. और अगर एरोबिक की बात करें तो एजोटोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया. एंड अगर एनारोबिक की बात करें तो क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज आर एनारोबिक, पर्पल एंड ग्रीन फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, मिथेनोबैक्टीरियम, ये सब एनारोबिक में आएंगे. अमोनिफिकेशन के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं एंड ऑल्सो फॉर दी डिफरेंट
नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन, ये भी आपको लर्न रखना होगा. सो या इस टेबल से, इस फ्लैश कार्ड से ही बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं. सो वन मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेक्शन, सो इट इज़ द डीएनए डैमेज रिपेयर एंड टॉलरेंस सिस्टम. सो मिसमैच रिपेयर कब होता है, कब ज़रूरत होती है? व्हेन देयर इज़ एन रेप्लिकेशन एरर, सो mismatch repair is done, and the enzyme responsible for the mismatch repair is mutS, mutL and mutH in E. coli and different variants in the eukaryotes like humans. So आपको वो याद रखना है. Now photo reactivation. So photo reactivation कब होता है? जब thymine dimers बनते हैं. Now BER, base excision repair. So it is responsible for correcting the damaged base through the DNA glycosylase. एंड NER दैट इज़ न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर. एंड NER से बहुत सारे डिजीज़ेस भी अराइज होते हैं. मैंने ऑलरेडी अपनी कम्युनिटी पोस्ट में लगा चुका है इसका बहुत सारा जो डिजीज़ होता है वो, डू चेक इट आउट. सो इट ऑल्सो करेक्ट्स द पायरिमिडीन डाइमर एज वेल एज व्हेन बल्की एडेक्ट ऑन बेस इनकॉर्पोरेट्स ड्यूरिंग द DNA रेप्लिकेशन. सो कौन कौन सा एंजाइम इसको ठीक करता है? UVRA, UVRB, C and D in E. coli and different forms in eukaryotic as mentioned in the table. नाउ डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक रिपेयर क्या करता है? डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक जब DNA में लग जाता है, यानी अगर इस टाइप का DNA है और दोनों ही स्ट्रैंड में यहाँ पे कट लग जाए तो ये वाला रिपेयर एक्टिव होता है. एंड द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर इज REC-A एंड REC-BCD in E. coli. Now translation DNA synthesis. So it is when pyrimidine dimer, apurinic site और bulky adduct on the base takes place. एंड इसके लिए भी एंजाइम मेंशन है. सो ये एक कंप्लीट टेबल है क्विक रिवीजन के लिए. आई होप कि आपको पूरा प्रोसेस पता होगा. सो अगर आप चाहते हैं कि मैं मिसमैच रिपेयर या जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ DNA रिपेयर है उस पर एक वीडियो लेके आऊँ, सो डू कमेंट बिलो, आई विल प्रोवाइड इट फॉर यू. So this is all for today. I have mentioned so many important questions as well as topics that is totally important for you. So don't miss it and do revise it to get more marks in the CSIR 2024.